नमस्कार। डायस पर अवस्थित सारे विद्वजन और साथियों, हमें बहुत खुशी है कि हमें ये मौका मिल रहा है आपके सामने कुछ अपने विचार पेश करने का। मैं करीब 38 साल से सुलभ इंटरनेशनल और डॉक्टर पाठक के साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कहें तो प्रोफेशनली जुड़ा हुआ। तो मुझे ये उत्सुकता हुई कि ये जो इनका बहुआयामी काम है, इसमें क्या सम काइंड ऑफ इसका सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। So I wanted to look into that. So I now go by the presentation as such. Next, please. Well, this paper illustrates the story of an enormous sanitation movement, which was propelled by a deep desire to migrate the sufferings due to an age-old practice and achieved by appropriate technical tools. Just minute में खत्म कर देंगे. Just minute, not more than that. So here we will see this deep-rooted socio-cultural malady has gender bias even within the affected community. Now, the government of India had enacted the employment of manual scavengers and construction of dry latrines. That was 1993. Then again in the year 2013, the Indian Parliament passed the Prohibition of Employment and Manual Scavengers and their Rehabilitation Act. लेकिन उससे भी कितना कुछ हुआ वो हमें सबको पता है। इसीलिए हमने ये जो सब्जेक्ट जो लिया है ना, डॉक्टर पाठक्स टेक्निकल टूल्स फॉर सोशल इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स. So that was the reason to look into these angles. Now this paper, next please. The torchbearer of this movement, which is Dr. Pathak, had realized that advocacy alone was not enough to bring about the desired change unless there was a scientific and dignified way to handle the job. It couldn't lead to a permanent solution, क्योंकि उसका crux वहीं पे था. There were prominent boundary conditions about the toilet also. क्या थे वो? The new system had to be environment friendly. It had to be hygienic, affordable even for the masses, and didn't require long gestation period or high skill set requirement. क्योंकि skill set requirement भी एक बहुत important issue होता है for mass application. Now overall it had to be dignified as well. Relevant technologies and systems invented by him are, मैं इस चीज़ को आपको 3 स्तर में बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने इतने तरह का काम किया. ये 53 साल का गाथा है, 53 साल का कहानी है, 1-2 दिन का नहीं है. तो मैं पहले इसको इनका पहले 3 स्टेज, फिर 5 स्टेज और फिर 7 स्टेज में अलग अलग तरीके से क्या क्या इन्होंने किया है उस पर मैं बात करना चाहूँगा. So the first set of 3 technologies which are directly related to this issue were, number 1, Sulabh Sanchalaya, about which a lot of discussion has been held. Now this is an appropriate household toilet which proved to be crucial in mitigating manual scavenging. The second was Sulabh Pay and Use Public Toilet Complex, which showed the way to sustainable management and caste neutral employment in such facilities. देखिए अब तक हम लोगों ने कास्ट पे बहुत सारी बातें करी, but here in the Sulabh Public Toilet Complex this was
the employment was caste neutral. You can go to any of our 10,000 public toilet complexes and you would see that different castes are employed there. And the third is the public toilet linked biogas plant in unsewered areas, paving the way for replacing the septic tanks, which had a higher pollution potential and unsafe fecal sludge management practices. So यहाँ पे ये जो fecal sludge management practice है, this also is an important issue. Actually, these are such vast subjects. One can discuss about this for hours. But here, of course, we'll just be touching upon them. Now, together, these created an environmentally compatible and socially relevant ecosystem which was practical to the core. This was very important, that this ecosystem had to be practical. Now, the focal problem of cleaning and removing fecal matter was resolved by Sulabh Sanchalaya, which has been discussed by many of my previous speakers, in which the fecal matter was composted in situ, which rendered it harmless while storing the plant nutrients. Now, the user family could easily take out the stabilized and composted material and use the same as a potent organic manure. The product, that is the manure, could even be shared with others by the householders or even sold. The bandwagon didn't stop here. In order to provide the affected community with lasting succor, Dr. Pathak incorporated intense capacity building comprising training in trades which could generate livelihood. Now, this again has been discussed by so many speakers. Now, education was provided as per their need. For their children, a revolutionary model of education was evolved. This hasn't been actually discussed here. Now, in this, the kids from the deprived community were put in the same class as the others, taking care of the socio-cultural aspects for their upbringing with the ethos of social equity. This was to instill the principle of social equity in the children. This was done like that. Now, caste-based religious barriers were broken by taking the community members to different temples where they were not allowed earlier. These feats were achieved not with conflict and violence, but with understanding and love. The magic social fabric was weaved with action sociology as the warp and the technical tools as the weft. So this was the magic actually. This great sustainable work was Dr. Pathak's way of mitigating the social climate in our country. I call it social climate mitigation. We talk about climate mitigation, but this, what he has done is social climate mitigation. Now, multidisciplinary approach. This was started 5 decades back. Friends, for the last 2 decades, we have been discussing about multidisciplinary approach, which is supposed to be a very efficient way of doing things. Now, this was acquired importance in the last 2 decades because there is a symbiotic relationship between the different disciplines. Here is a story which started 53 years ago, that is more than 5 decades ago, which embodies the spirit of multidisciplinary approach in a big way. The story revolves around its high priest, Dr. Bindeshwar Pathak, founder of Sulabh Sanitation and social reform movement, who gradually created a crucible called Sulabh Sansar, in which the alchemy of strange combinations were experimented with, honed over time, leading to winds of change that nobody had imagined when he had started in the year 1968. So this was, I think, in my opinion, this was his biggest achievement, and I have told him so many times. मुझे पता है महिलाएं जहाँ बैठती हैं चुप नहीं रहती हैं,
ये मुझे पता है, ऐसा मत जाने मुझे पता नहीं है, लेकिन कृपया सीरियस बात यहाँ हो रही है तो जरा सुनिए भी। घर पर दाल पका होगा या भात पका होगा, बात चर्चा कर लीजिएगा। या हाँ, बताइए। नहीं, हम लोग सुन के उनको समझा देंगे ना, उसकी चिंता नहीं। नहीं, ऐसा है ना, वो हाव भाव से समझ जाते हैं लोग। हाँ, वो भाषा दो है ना, एक भाषा लिखित भाषा, एक है हाव भाव की भाषा, है नहीं। जैसे आप खड़ी हैं वहाँ पर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कहीं आप में हमें झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो आप वहाँ कुछ दूसरे से बात कर रही हैं, तो मैं समझूंगा कि आप हमारे खिलाफ बात कर रही हैं। ठीक है? नहीं, बात आप दूसरी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये लोग हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये ऑथर जो है पक्ष में बोल रहा है कि खिलाफ में बोल रहा है। तो इसलिए आपका कहना सही है, लेकिन जिनको अंग्रेजी बोलने की आदत है उनको हिंदी कहेंगे तो कठिनाई होगी। हम लोग फिर समझ के बता देंगे। इसके बाद भी हम लोग कुछ लोगों को बुलाएंगे, 10-5 पेपर ऐसा बुलाएंगे जहाँ 2-3 दिन टाइम दे करके डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है ना? क्योंकि अब जो अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं उनको हिंदी में कह दीजिए तो मुश्किल हो जाएगा, उनका थॉटे नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जैसा चुप रहिए, हम लोग फिर सुन के समझा ही देंगे आप लोगों को ना। आप लोग समझ जाते हैं, आप लोग तो है नहीं। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनारी। है गाना है ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनारी है। चांद खिला और तारे सजे, ये रात बड़ी मत वाली है। ठीक है, चलिए। देखिए, हिंदी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन चीज़ों को हिंदी में लिखने का या बताने का उतनी क्षमता अभी मुझे उतना नहीं आया है। भविष्य में मैं कोशिश करूँगा, और कंप्यूटर में भी जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें हिंदी में मुझे करना नहीं आता है। सो दैट्स माय लिमिटेशन, बट एनीवे। बताते जरूर सर। ये देखिए, बंगाली हैं, तो बंगाली जो हैं आज तक हिंदी नहीं सीखे हैं, ये बात समझ लीजिए आप। क्योंकि आज भी कोलकाता में जाइएगा तो लोग पैसा बोलते हैं, पैसा नहीं बोलते हैं लोग। पैसा देगा, पैसा देगा नहीं। तो बंगाली में प्रॉब्लम है कि वो अंग्रेजी साफ साफ बोल रही है, बढ़िया। कैसे बोल रहे हैं मजुमदार साहब? इंग्लिश फटाफट बोल रहे हैं, बट हिंदी आज तक बंगाली सीखा ही नहीं कभी वो लोग, क्योंकि कोशिश ही नहीं करता सीखने का। और आज भी पैसा, इतने दिल्ली में रहते हैं इसलिए, नहीं तो कलकत्ता में कितने बंगाली मिलेंगे, सब पैसा है नहीं, पैसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, थैंक यू। मैंने मजाक के लिए कहा हमने। Well, the spirit of his endeavor was his humane approach, filled with piety and concern for the pain and trials and tribulations faced by the lowest rung of our society, who were burdened with manually cleaning bucket toilets and carrying the material to the disposal ground as a head load. So this he felt this pain. He stayed with them for months together, sharing and feeling their agony, and started breaking the fetters, not with force, but by convincing the concerned stakeholders with love. He realized that mere advocacy was not adequate to achieve a sustainable change. Strong and appropriate tools were required to bring about lasting change in the system and the society. वहीं से मेरा एक्चुअली इस प्रस्तुति का मुख्य विषय है. He realized that the root cause was a very mundane issue, a dignified place to defecate, that is a toilet.
which was simple and affordable for the masses, and the freedom from the need to hire someone to clean it. So this was a simple, mundane issue, but this was the whole crux of this pain and tribulations. The toilet had to be, or should be, hygienic, environmentally compatible, and in keeping with the ground situation, such as availability or scarcity of water, because that also is an important issue. आज आप देख रहे हैं पानी की कितनी कमी हो रही है. And of course it has to have a long life. Next please. ये मेरा बहुत प्रिय वो है, और फाउंडर साहब से भी मैंने कई बार इस चीज़ को कहा है कि मैं इसको एक क्रूसिबल के तरफ देखता हूँ, एक अल्केमी का क्रूसिबल के तरफ देखता हूँ, जहाँ इनके 3 आयाम है. टेक्निकल टूल्स है, एक्शन सोशियोलॉजी है और सोशल इंजीनियरिंग है. और इसका जो सम टोटल जो इम्पैक्ट होता है, दैट लीड्स टू सोशल इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स. तो ये चीज़ है. तो नेक्स्ट प्लीज. नाउ अभी जैसे हमने कहा था ना कि मैं 3 स्तर में फाउंडर साहब का जो इन्वेंशंस है उसको बताऊंगा. तो पहला 3 तो मैंने कह दिया, विच वाज बेसिकली टॉयलेट रिलेटेड. अब मैं 5 वाले के लेवल में आ रहा हूँ. तो टेक्निकल इनोवेशन में इनका पहला हो गया सुलभ शौचालय, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Second is Sulabh public toilet, already discussed. Public toilet complex related to biogas plant, discussed. Next, additional developments, use of water hyacinth for biogas production as well. चूँकि ये भी बहुत जगह पे एक प्रॉब्लम के तरह, एक समस्या के तरह रहता है. अगर उसको ह्यूमन वेस्ट के साथ अगर बायोगैस प्लांट में डालते हैं, ज़्यादा गैस बनेगा, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी. इसको इन्होंने दिखाया. और जैसा कि अभी सरकार साहब लंच के पहले इन्होंने बताया था ना, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन एरियाज विथ जियो कंटामिनेटेड एक्विफर्स बाय यूजिंग सरफेस वाटर इन अ सिंपल स्मार्ट मैनर. मैं इसको एक स्मार्ट मैनर इसलिए कहता हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजीज तो और भी हैं, जिससे आप आर्सेनिक हटा सकते हैं, फ्लोराइड हटा सकते हैं, आयरन हटा सकते हैं, सभी के टेक्नोलॉजीज है. कुछ केमिकल हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जिस एरिया में सरफेस वाटर एडिक्वेटली अवेलेबल है, पेरेनियली अवेलेबल है, पेरेनियली मतलब 12 महीना जहाँ पानी अवेलेबल है, एडिक्वेट क्वांटिटी में काफ़ी पानी अवेलेबल है, वहाँ आप सरफेस वाटर को शुद्धिकरण करके पेयजल के रूप में उसको व्यवहार कर सकते हैं. इससे ये होगा कि इतना सारा जो सरफेस वाटर है, चाहे वो पॉन्ड्स में हो, तालाब में हो, लेक में हो, झील में हो या नदी में हो, जिसको उतना उपयोग नहीं किया जाता है, हर जगह सरकार के तरफ से बड़ा बड़ा बोरिंग वेल वो इंस्टॉल किया जाता है. तो जहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ तो इसको कर ही सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता इन्होंने दिखाया. मधुसूदन घाटी या बंगाल में जो किया गया है आधे दर्जन जगह पे, ये एक एग्जाम्पल है जिसको कि सारे देश में जहाँ भी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इसको लागू किया जा सकता है. नेक्स्ट प्लीज. इस पे बहुत बात हुई है. यही जो है ये सारे चीज़ों का मूल मंत्र यही है. अच्छा, देखने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है, सिंपल लगता है, सिंपल ये है, लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारी इंजीनियरिंग है. उसको अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा. तो वो टाइम अभी नहीं है. आप ये जानें कि ये सिंपल सा देखने वाला जो सिस्टम है सुलभ शौचालय, ये ऐसे ही नहीं है. इसके अंदर भी बहुत सारी इंजीनियरिंग है और ये बिल्कुल एक पुख्ता सिस्टम है, कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. ये उसका पहला वाला था लेआउट और ये उसका सेक्शन है. नेक्स्ट प्लीज. अब हम आपको दिखा रहे हैं जो बायोगैस वाला
आपने देखा भी होगा जब आप हमारे यहाँ गए होंगे। एक्चुअली जो बायोगैस प्लांट है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो ये जो ड्रम दिख रहा है बायोगैस होल्डर लिखा हुआ, वो मेन बायोगैस प्लांट नहीं है। बायोगैस प्लांट जहाँ फूल लगे हुए हैं उसके नीचे है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करी जा सकती है, लेकिन वो बाद में कभी होगा। नेक्स्ट प्लीज। इसका बायोगैस प्लांट का ही जो हमारा सिस्टम वहाँ पे है, उसी का एक सेक्शन ड्राइंग ये है। तो इसमें ये पूरा दिखाया गया है कि बायोगैस प्लांट वो पब्लिक टॉयलेट से लिंक्ड है, फिर उसका जो एफ्लुएंट निकलता है उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है हम लोगों ने सेट, यानी कि सुलभ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट वो है कि हम लोगों ने अब तक जो देखा कि हमारे फाउंडर साहब ने जो अलग अलग टेक्निकल टूल्स इन्होंने दिए हैं, उसका टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है। तो मैं समझता हूँ इसको अगर हम डिटेल में क्या अभी बताएं, लेकिन टाइम और लग जाएगा, या फिर पेपर में तो है ही, लोग देख लेंगे। तो इसमें हमने कंपैरेटिव एक बताया है कि किसी भी एक चीज़ का, मैं एक का खाली बताता हूँ। देखिए, सुलभ शौचालय है, इसका टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या है। सो एनवायरमेंटली कंपैटिबल एंड इट रिक्वायर्स मच लेस वाटर, विच इज अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पानी जो है आजकल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। आप सेप्टिक टैंक रखेंगे, आपको कम से कम 5-6 लीटर लगेगा। आप सीवर लाइन अगर रखते हैं तो अगर 100 LPCD यानी कि 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उससे कम अगर आपके घर से सीवर लाइन में जाता है तो सीवर लाइन में चोकिंग होने की, उसका सेल्फ क्लीनिंग जो वेलोसिटी होता है वो होगा नहीं। ये जो सिस्टम है इसमें कम पानी लगता है, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इसका लाभ है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, लेस कॉस्ट देन सेप्टिक टैंक, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और सोशल इम्पैक्ट क्या है, यूजर फैमिली कैन टेक आउट द स्टेबिलाइज्ड मैन्योर आफ्टर द रिकमेंडेड पीरियड, हेंस no need for hiring scavengers. The main support for liberation from manual scavenging, social equity and human rights, this is the crux of the thing. उसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी दिया गया। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम कहें कि सिर्फ सुलभ शौचालय का अगर हम देखें अलग से कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एज ए टूल फॉर सोशल चेंज। नाउ फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, ऑफ कोर्स नहीं, इसको हम आगे ही चलते हैं बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इसमें भी मेरे ख्याल से इसको भी छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम इसका इन बिंदुओं पे देखें, क्रक्स वो ये है, लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग, safety and convenience of women, children, elderly, and the infirm or the sick, and easier access to toilets for maximum families. ये इतने सारे benefit इसके हैं. This is the sum total of all this. Additionally, significant social upgradation has been made possible by the continuous endeavor of Sulabh International, inspired by Dr. Pathak. Ladies of erstwhile scavengers families from Alwar and Tonk in Rajasthan have completely transformed lives and livelihood, जो हम कल से हमने देखा भी है. Similarly, the old widows and abandoned by their families, precariously living in ashrams in Vrindavan and Varanasi, have got new lives, good health, and renewed spirits. In contrast to Sulabh Shauchalaya, septic tanks require 5 times more water. इसमें आपको 1-1.5 लीटर लगता है, वहाँ 5 से 7.5 लीटर लगता है. डिसलजिंग प्रॉब्लम है, आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, कौन करेंगे, कहाँ करेंगे, एक्सेस रोड नहीं होगा. नेक्स्ट प्लीज. ये भी करीब करीब वही चीज़ है, सेम, जिसमें टेक्निकल टूल, सोशल इंजीनियरिंग और इक्विटी की बात है. तो इसको भी वी कैन जस्ट मूव ओवर. नेक्स्ट प्लीज.
Alchemy in the crucible of सुलभ संसार. तो मैं सुलभ संसार में ये भी मानता हूँ कि एक एल्केमी चल रहा है. आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या है? सुलभ शौचालय है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है विथ सोशली पॉजिटिव कोर, स्कूल सैनिटेशन क्लब है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू म्यूजियम्स. हमारे पास 3 म्यूजियम है, वाटर म्यूजियम, सैनिटेशन म्यूजियम और MHM, menstrual hygiene management, or dissemination of knowledge through incorporation in educational curricula in colleges and university for which we are here, mitigating the sufferings of abandoned widows and providing safe drinking water in areas with geocontaminated aquifers. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सुलभ संसार है, यहाँ जो अनवरत जो ये अल्केमी चल रहा है उसके ये 7 कंपोनेंट मेन है. नेक्स्ट प्लीज. In conclusion, this story has stood the test of time, 53 years, by standing tall and becoming taller over the last more than half a century, and has set up bright examples of social reforms through action sociology and social engineering. At the same time, enviable track records have been set by construction of about 1.6 million household Sulabh Shauchalaya and 10,000 Sulabh public complexes. Thus, hardware and software have been churned in the crucible of change in the most efficient manner. तो ये हवा में नहीं है, 53 साल से जो ये बना है ये वास्तव है. थैंक यू. I can say only one thing: we have converted him into action sociologist. I'm grateful for that. If you see his triangle pyramid, he's put action sociology. Finally, he is acknowledged action sociology. मैं तो यही कहूँ. हाँ? अब बोल